We will start our technical session now, and our first resource person is Dr. Megha Agarwal, ma'am. She is Associate Professor at UIM Uttaranchal University. She is a commerce graduate with MBA, MCom, NET, and PhD in management, and she has a total teaching experience of 12 and a half years. She had remained associated with Faculty of Management Studies, Banasthali Vidyapeeth, Rajasthan, for more than 10 years. Her area of specialization is accounting and finance. She has remained resource person of Swayam MOOC for IFRS course and NRC management in Banasthali Vidyapeeth. She has been awarded as Excellence in Teaching in the year 2016, December, by ICSI Jaipur, India. He has published a number of research papers, 15 research papers and 3 Scopus index papers. She had also presented 12 papers in FDP's workshop and organized 2 national workshops and 15 she had attended. Under her guidance, 5 PhD scholars have completed their degrees in area of finance and banking, and 5 PhD are in the submission process. So with this very dynamic a very dynamic profile of Dr. Megha ma'am, I would like to call him and ask him to lead the session ahead. Thank you, Shashank sir. Am I audible to all the participants? Yes, ma'am, you are audible. Okay. First of all, I would like to thank you, Vikas sir, for the great opportunity. And I would also like to tell that I'm very much agreed with the words said by Dr. Singh and Dr. Jaiswal. The area of accounting is expanding, and the other fields are also correlating or trying to enter into this field. So I suppose it is a wake-up call for the people working for accounting and commerce. And this is the era of technology, which I believe. Post-COVID, the technology has taken the shape in the education as well. And we, being an accounting professionals, are also required to enter into this technological world. So understanding the softwares, understanding the artificial intelligence, the proper usage of human resources, that is also a big challenge for us. So we have to work really hard in this field, and we have to gain attention of the other world into this area. So not taking much time to this, I would like to start my talk on a few basics of management accounting, and then the further 1 or 2 I can say 1 or 2 technique which is related to management accounting. So I would like to share my screen. Just a second. Is the screen visible to everyone? Yes, ma'am, it is visible. Okay, thank you. Okay, so I would like to talk about the management accounting. So first of all, I would say why this field is required in the accounting world. Whenever we talk, so companies are also focusing on cash. What is the total cash in hand? So why this management accounting is needed in this world? But what is basically this management accounting is all about? So whenever we talk about the management accounting, we say that it is the process of the providing the financial information and resources to the managers in decision making. Now, whenever we talk about the providing the financial information, financial accounting provides the data which puts into some techniques or to the tools for getting the useful information which are helpful for the managers in decision making areas.
So these decision making areas are relevant to the organization for their planning, for their operation part, for their strategy part. So management accounting is the process which provides this information. This is the representation of financial data and business activities for the internal management. We need to understand this, first of all, that financial and cost accounting are useful for external members of the company as well. But this management accounting is used only by the internal management, only by the top management of the company. They use the data by financial and cost accounting, and through that data that they can take it, they can convert it into their useful meaning, and then which is helpful for the organization. So this is the internal team. So this management accounting is used only by the internal team of the organization. And the basic objective of this management accounting is to better understanding and accurate decision for controlling the enterprise. Whenever we talk about the controlling the enterprise, here we are not talking about only the financial control or the managerial control. Here we are also talking about the marketing control. We also talks about the human resource control. We also talks about the employees control. So the various decisions which are related to an organization, those all can be controlled through some management accounting information. Some business activities can be controlled, how much profits, how much losses company is generating. Yes, sorry. Yes, ma'am. Sorry to interrupt you, ma'am, in between. But it will be very beneficial for all the participants if we can mix Hindi and English. Achha, okay, sure. So, whenever we talk about this, हाँ जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जब हम बात करेंगे तब हम कहेंगे कि उसका जो डिसीजन मेकिंग पार्ट है वो एंटरप्राइजेस के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए भी है. तो डेवलपमेंट किस तरीके से होगा? मोर प्रॉफिट, ज्यादा कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो ज्यादा हमारे कंपनीज के ज्यादा एक्सपेंशन कर सकती है, और एक्सपेंशन कर सकती है तो दे कैन जनरेट मोर कस्टमर्स, दे कैन जनरेट मोर सेल्स. एज जसवाल सर ऑल्सो डिस्कस, ज्यादा हायर सेल्स पर जाएगी, बिग प्रोडक्शन स्केल पर प्रोडक्शन करेगी. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिसीजन है एक कि कंपनी ज्यादा प्रोडक्शन या ज्यादा स्केल पर प्रोडक्शन कैसे कर सकती है. तो इस तरीके के डिसीजन हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लेने हैं. एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन, तब हम कहते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन का मतलब यूसेज, किस तरीके के स्किल्स की जरूरत है या किस तरीके के नॉलेज की जरूरत है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन तो आ गई, लेकिन अब उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, उस इस्तेमाल के लिए जो क्या करे, विच विल असिस्ट द इंटरनल मैनेजमेंट, जो हेल्प करे, जो एक असिस्टेंस प्रोवाइड करे, जो मदद करे टॉप मैनेजमेंट की, कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट की, फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ क्या बनाने में, पॉलिसीज, प्लानिंग एंड कंट्रोल. कुछ पॉलिसीज को बनाने में, कुछ नीतियां बनाने में, कुछ प्लानिंग के लिए और कुछ कंट्रोलिंग टेक्निक्स के लिए ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस और फर्म. जो बिजनेस के काम है उनको चलाने के लिए कुछ नीतियों की जरूरत है, कुछ प्लानिंग की, कंट्रोलिंग की जरूरत है. तो उसके लिए हमें इंटरनल मैनेजमेंट को जो मदद करती है उस तरीके की स्किल्स का यूसेज है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा को इस्तेमाल करे. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये मिक्सचर है किस किस चीजों का, फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा का, जिसका हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे, उस इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है बाय थ्रू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग. नाउ व्हेनेवर और एडवांटेजेस, तब हम कहते हैं कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लानिंग.
मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? प्लानिंग करती है, देखती है कि हमारी कौन सी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन यूज होगी, कौन सी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को कंपनी इस्तेमाल कर सकती है फॉर सम काइंड ऑफ डिसीजंस। कंपनी को प्रोडक्ट ए बनाना है या प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए को हटाना चाहिए या प्रोडक्ट बी को हटाना चाहिए। तो इस तरीके के डिसीजंस कैसे ले सकती है कंपनी? डिसीजन मेकिंग की हेल्प से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से। और जैसा मैंने पहले बताया, कंट्रोलिंग दी बिजनेस ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेगी। ऑर्गेनाइजिंग, सारी चीजें हमारी सही तरीके से चल रही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की हम बात करते हैं यहाँ पर, या फिर हम बात करते हैं कॉस्ट रिलेटेड कंट्रोल्स की, बजटरी कंट्रोल्स की। तो ऑर्गेनाइज करना है हमें अपने फॉरकास्टिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को। हम फाइनेंशियल डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं और उसे इस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं कि वो हमें प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। बिजनेस के प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने प्रॉपर स्ट्रैटेजीज को, कि किस तरीके से हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना चाहिए और किस तरीके से हमें उन प्रॉब्लम एरियाज को हटाना चाहिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तब हम कहते हैं कि इसके कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। नॉट एवरी फील्ड इज फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस। हर जगह कोई ना कोई चीजें रह जाती है जहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो सबसे पहला, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस पर बेस्ड है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर। तो जिस तरीके का डेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग देगी वैसा ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिसीजन आएगा। बैलेंस शीट मैच हो रही है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी उसी बैलेंस शीट को यूज करेगी। और वो कैसे की है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू, एज ऑलरेडी गिवन बाय वन एग्जांपल जयसवाल सर ने दिया, सिंह सर ने दिया। तो उस तरीके के डेटा को अगर हम यूज कर रहे हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अपने लिमिटेशंस भी शुरू हो जाएंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कम इस्तेमाल करती है इकोनॉमिक्स पार्ट को, फाइनेंशियल या स्टैटिस्टिकल टूल्स को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेजर फोकस है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा पर है, और वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। उसमें अब हम इकोनॉमिक्स को या फाइनेंसेस को या स्टैटिस्टिक्स को कम इस्तेमाल कर पाते। देयर इज अ यूसेज, इस्तेमाल होता है, लेकिन जो आज की डेट में मैक्सिमम यूसेज हो रहा है स्टैटिस्टिकल टूल्स का, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं आ पाता। हिस्टोरिकल डेटा को यूज कर रही है। मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाई 31 मार्च को, मेरा डिसीजन आ रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में। तब तक इन दीज 6 months हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए मार्केट में, हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए मेरी बिजनेस स्ट्रैटेजीज में, हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए मेरे काम करने के पॉलिसीज में। तो वो सारी चीजें मेरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा पर नहीं आएंगी, और जब वो नहीं आ रही है तो मेरा डिसीजन भी किस पर बेस्ड है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर। तो यहां पर क्या होगा कि मैनेजमेंट का जो डिसीजन है वो हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड हो रहा है रादर देन प्रेजेंट डेटा। प्लस ऑब्वियसली मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए वी नीड सम स्पेशलाइज्ड पीपल। ऐसे लोग चाहिए जो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट कर सके फॉर मेकिंग मैनेजरियल डिसीजन पार्ट, और उसके लिए जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, स्किल्स है, उसकी जरूरत है। तो कंपनी के लिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा कंपैरेटिवली टू फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। जब भी हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बड़ी कंपनीज के लिए है, छोटी कंपनीज में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई स्कोप नहीं है। ये एक तरीके की, मैं मानती हूँ ये एक तरीके की गलत धारणा है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी डिसीजन जरूर लेगी, चाहे वो छोटी है या बड़ी, लेकिन फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग को अडॉप्ट करना उनका कंपल्शन है। हर कंपनी जो रजिस्टर्ड है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, लेकिन उसे कोई मैनेजमेंट इंटरनल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की कोई ऐसी लीगल फाउंडेशन नहीं है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम कोई भी कंपनी जब अडॉप्ट करती है तो वो ये देखती है कि उसका कॉस्ट
कॉस्टिंग कितना बढ़ जाएगा, उसके कॉस्ट पर कितना फर्क पड़ेगा, उसका कैश आउटले, उसका कैश आउटफ्लो कितना होगा। तो उस वजह से क्या होता है, जितनी भी छोटी कंपनीज हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज करने के लिए थोड़ा रिलक्टेंट या थोड़ा नेगेटिव व्यू शो करती है। इस वजह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग आज भी बहुत कम यूसेज में आ रही है, लेकिन जो बिग कंसर्न्स हैं, दे ऑलवेज फोकसेस ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर देयर डिसीजन। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिसीजंस लेने हैं तो कौन कौन सी टेक्निक्स अडॉप्ट करती है कंपनी। बजटिंग, मुझे अगले 3 महीनों के लिए बजट बनाना है, मैं क्या बजट बनाऊं, मुझे कितना खर्चा करना चाहिए। देन मार्जिनल कॉस्टिंग, कंपनी को कितना फिक्स वेरिएबल कॉस्ट का यूसेज करना चाहिए। वर्क स्टडी, रिस्क एनालिसिस, कैश एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो अभी जो हम 7 days की वर्कशॉप हम कर रहे हैं, इसमें वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम ऑफ दीज techniques through this workshop. My major focus for today's lecture is on marginal costing. सबसे पहले हम marginal costing के बारे में बात करेंगे and we will talk about CVP and BEP analysis, cost volume profit analysis and break even point analysis. हम ये 2 चीजों पर आज डिस्कशन करेंगे। To start with marginal costing, तो सबसे पहले मैं अपने पार्टिसिपेंट से, स्टूडेंट से पूछना चाहूंगी कि ये जो ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में कौन सी ऐसी चीज है जिसका रिलेशनशिप मार्जिनल कॉस्टिंग से है। आप आंसर चैट बॉक्स में नहीं लिखिएगा, अपना माइक ऑन करके बताइएगा। ये जो पिक्चर हमें दिख रही है स्क्रीन पर, इसमें कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है मार्जिनल कॉस्टिंग से जो दिखाया जा रहा है। एनी ऑफ दी स्टूडेंट। बेटा चैट बॉक्स में नहीं लिखना, अपना माइक ऑन करके बता सकते हो। Anyone? This picture basically talks about the balance between the time and money, right? तो अगर मैं टाइम और मनी की बात कर रही हूँ, तो जितना ज्यादा टाइम मैं डिवोट कर रही हूँ, हम कह रहे हैं हमें स्केल पर दिख रहा है कि हमारा टाइम लाइटर वेट का है तो मेरे पास पैसा ज्यादा है। टाइम मैं हैवी कर दिया मैंने, तो मेरा पैसा लाइट वेट का हो गया। थर्ड पिक्चर दिखा रही है कि दोनों के बीच में बैलेंस, और फोर्थ पिक्चर दिखा रही है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। वी डू नॉट हैव टाइम, सो वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ, वी डू नॉट पुट टाइम, हम समय नहीं लगा सकते, तो हमें मनी का भी कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि कॉस्ट हमारी कौन कौन सी होगी। एक वो कॉस्ट होगी जो मुझे आज लगानी है इन प्रेजेंट ड्यूरेशन, एक वो कॉस्ट होगी जो मुझे एक लंबे समय के लिए लगानी है। ठीक है, एक वो कॉस्ट होगी जो मेरे प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होगी, जो मेरे प्रोडक्शन से इनडायरेक्टली रिलेटेड होगी। तो कॉस्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टोटल कॉस्ट, कि मेरी टोटल प्रोडक्ट बनाने में कितनी कॉस्ट लगी। फिर हम कह सकते हैं कि मेरी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट को बनाने में, या इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट को बनाने में, या फिर मैं कहूंगी कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, स्थायी लागत कितनी है, और मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, मेरी परिवर्तनशील लागत कितनी है। राइट, तो अब जब हम वेरियस कॉस्ट की बात करते हैं, तो फिक्स या उसके क्लासिफिकेशन पर जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये पिक्चर थोड़ी सी हमारे टॉपिक से हटकर है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस जगह को मिस कर रहे हैं? भाई मैं तो मिस करती हूँ। में से कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, इंक्लूडिंग विकास सर, शशांक सर, जयसवाल सर, कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ जाना मिस कर रहे हैं? राइट, आर वी मिसिंग दिस प्लेस? यस मैम, वेरी मच। वेरी गुड। अब जब हम इस प्लेस की बात कर रहे हैं, तो इस जगह में, इस पर्टिकुलर पिक्चर में अगर मैं आपसे
कहूं कि कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है आपको, जो आपने अभी पिक्चर देखी कि आपको आइडेंटिफाई करना है पीवीआर ने एज अ कंपनी कौन कौन सी कॉस्ट लगा रखी होगी फॉर बिजनेस। तो पीवीआर ने लगा रखी होगी दो तरीके की कॉस्ट, एक लगा रखी है फिक्स्ड कॉस्ट और एक लगा रखी है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जहां पर हमने एक बार पेमेंट कर दी और वैसी ही पेमेंट मुझे हर महीने करनी है फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। सेल्स को जनरेट करने के लिए मुझे उतना अमाउंट हर महीने देना पड़ेगा। जैसे सैलरीज, कंपनी के एम्प्लॉइज की सैलरीज हर महीने एक जैसी ही जाएगी। कंपनी की ऑफिस बिल्डिंग का रेंट हर महीने एक जैसा ही जाएगा, यहां पर कोई चेंज नहीं है। रेंट में, टैक्सेस में, प्रॉपर्टी टैक्सेस में कोई चेंज नहीं है, डेप्रिसिएशन में कोई चेंज नहीं है। हर महीने एक जैसा ही अमाउंट, हर साल एक जैसा ही अमाउंट मुझे देना पड़ेगा। इंश्योरेंस, ठीक है। फिर हम आते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जो डिसाइड करती, जो डिपेंड होती है मेरे सेल्स पर या मेरे प्रोडक्शन पर। कम प्रोडक्शन है, कम वेरिएबल कॉस्ट आएगी। ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट आएगी। रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। कच्चा सामान मुझे कितना चाहिए, तो कम प्रोडक्शन करूंगी मुझे कम कच्चा सामान चाहिए। ज्यादा प्रोडक्शन करूंगी तो मुझे ज्यादा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। कमीशन, मेरा सेल्समैन ज्यादा सेल्स करेगा तो मैं उसे ज्यादा कमीशन बोनसेस दूंगी। मेरा सेल्समैन कम सेल्स करेगा तो मैं उसे कम कमीशन या कम बोनस दूंगी। सेम विद वेजेस, लेबर ज्यादा प्रोडक्शन करेगी तो ज्यादा वेजेस दूंगी। लेबर कम प्रोडक्शन करेगी तो मैं उसे कम वेजेस दूंगी। यस मैम। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फिक्स कॉस्ट क्या है, सेम रहती है। सेल्स मेरी कितनी भी हो, कम होगी सेल्स तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा होगी सेल्स तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, सेल्स के हिसाब से चेंज हो जाएगी। उसका नाम भी क्या है, वेरिएबल, वैरी करेगी। फिक्स्ड जो कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड रहती है। लेकिन जैसा सर ने जैसा कहा कि उन दोनों में एक और बात है, पर यूनिट पर जब हम आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब एक यूनिट की लागत, एक यूनिट की कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या होगी, सेल्स बढ़ाते जाएंगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होने लग जाएगी। लेकिन सेल्स बढ़ाने लग जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, फिक्स हो जाएगी। फिक्स तो रहेगी। ये कॉन्सेप्ट है, ये हमें समझने की जरूरत है। हाँ जी, कांस्टेंट रहेगी ना। जो ये कॉन्सेप्ट है हमें समझने की जरूरत है कि फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट जब हम बात करते हैं तो हम किसके कंटेक्स्ट में बात करते हैं, हम बात करते हैं इसके टोटल के कंटेक्स्ट में, कि टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, मेरा प्रोडक्शन कितना भी हो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज, मेरा प्रोडक्शन चेंज होगा। अगर मैंने प्रोडक्शन बढ़ाया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यहां पर हम पर यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं टोटल की बात। तो जब हम कॉस्ट के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल के लिए, बीइंग एन इंडिविजुअल, एक अकेले आदमी के लिए कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, फिक्स को या वेरिएबल को। तो हम कहते हैं कि मेरा महीने का, एक महीने का मंथली एक्सपेंस क्या क्या है, कि मुझे कार की ईएमआई देनी है, मुझे घर का रेंट देना है, मुझे अपने बच्चों के स्टूडेंट का एजुकेशन का लोन देना है, इंटरनेट का हर महीने का खर्चा है, टाटा स्काई का हर महीने का खर्चा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, फिक्स एक्सपेंस हो गया। वेरिएबल मेरे लिए क्या क्या है, किसी महीने मेरे पास डॉग है, वो बीमार हो गया तो उसका खर्चा हो गया, किसी में पड़ गया वो खर्चा हो गया, किसी महीने दिवाली आ गई, न्यू ईयर आ गया तो मुझे क्या करना पड़ा, एक्स्ट्रा शॉपिंग करनी पड़ी, तो वो सब क्या हो गया मेरे लिए, वेरिएबल एक्सपेंस। ठीक है, तो हमें क्या करना है,
अपने लाइफ के एग्जाम्पल से कंपनी के कॉस्ट को भी आइडेंटिफाई करना है। तो ये वाले सारे खर्चे जो हम फिक्स की बात कर रहे हैं, ये कौन से हैं? जो मुझे हर महीने देने ही हैं, जिनको मैं चाहकर भी नहीं हटा सकती। मेरे पास क्या होगा? सैलरी जो मेरी है, जो मेरी इनकम है, वो एक स्टेबल अमाउंट है, वो हर महीने एक जैसा ही आना है। उसमें से मुझे ये फिक्स खर्चे तो हर महीने निकालने ही है, लेकिन मेरे पास वेरिएबल के लिए किसी महीने ज्यादा स्कोप है और किसी महीने कम स्कोप है ना? तो ज्यादा पैसा होगा मेरे पास तो मेरे वेरिएबल एक्सपेंसेस ज्यादा कर सकती हूँ, कम पैसा बचेगा मेरे पास तो मैं वेरिएबल एक्सपेंसेस कम कर सकती हूँ। लेकिन क्या हमारे पास और तीसरे तरीके की कॉस्ट है? बेटा माइक म्यूट कर दीजिए जिसका भी ऑन है। I have muted, ma'am. Third And I request type also of the cost. participant to please turn their mic off. बेटा जब आपसे कहा जाए तब ऑन करके आंसर करिए, फिर ऑफ कर दिया करिए, ठीक है? हमने कहा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जिसमें दोनों का कुछ कुछ फिक्स है, कुछ वेरिएबल है। टेलीफोन बिल का खर्चा कुछ फिक्स रहता है, कुछ वैरी करने लगता है, ठीक है? तो वो क्या हो गई? हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो एक इंडिविजुअल के लिए आसान है, लेकिन अब हम क्या देखना चाहते हैं? एक कंपनी के लिए, एक बिजनेस के लिए कॉस्ट कैसी होगी? हाँ जी, अब ये एक मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है, मैं कुछ पिज्जा बेचती हूँ बनाकर, कुछ मोमोज बेचती हूँ बनाकर। या उत्तराखंड में बड़ा फैशन है मोमोज और पिज्जाज का। तो मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर इस छोटे से रेस्टोरेंट में मेरी कौन सी फिक्स कॉस्ट है और कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है? हाँ जी, कोई बताए। Rent will be fixed cost and raw materials like the pizza base or anything you are using with it will be variable cost. ओके, तो एक बिजनेस की अगर मैं इस कैफे की बात कर रही हूँ, तो जो ये टेबल चेयर दिख रही है, It will be fixed cost, ma'am. इलेक्ट्रिसिटी फिक्स रहेगी? अच्छा, No. Yes, ma'am. चलिए, यस मैम फिक्स रहेगा इलेक्ट्रिसिटी। मैं ये टेबल चेयर की बात कर रही हूँ, तो ये टेबल चेयर मेरे लिए क्या हो गई? फिक्स कॉस्ट हो गई। मैंने एक बार टेबल चेयर खरीदी और मैं इसका इस्तेमाल रोज कर, हाँ, यहाँ पर जो सामान दिख रहा है कि मैंने कुछ चीजें यहाँ पर सिरप वगैरह खरीद रखे हैं, कोई टोस्टर खरीद रखा है, ग्लासेस खरीद रखे हैं, तो ये सब भी क्या है? फिक्स कॉस्ट का पार्ट है, राइट? अब जैसा एक स्टूडेंट ने कहा कि पिज्जा बनाने के लिए पिज्जा बेस चाहिए मुझे, मोमोज बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो सब क्या हो गया? मेरा वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी सेमी वेरिएबल का पार्ट होगी, कुछ अमाउंट तक फिक्स रहेगी। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने लगूंगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आने लगेगा, तो सेमी वेरिएबल का पार्ट हो गई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो जब हम बिजनेसेस की कॉस्ट, हाँ जी, एलपीजी मैम, हाँ, एनी डाउट? मैम व्हाट अबाउट एलपीजी सिलेंडर्स? Semi fixed cost. एलपीजी सिलेंडर्स, ओके, गुड क्वेश्चन। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एलपीजी गैस, किसी महीने हो सकता है मेरा बिजनेस ज्यादा चल रहा है, ज्यादा लोग आ रहे हैं मेरे बिजनेस में, तो ज्यादा गैस खर्च होगी। किसी महीने हो सकता है कि मुझे कम जरूरत हो, तो हम कह सकते हैं कि एलपीजी सिलेंडर्स का जो खर्चा है वो सेमी वेरिएबल में हम उसको डाल सकते हैं कि किसी महीने 4 सिलेंडर्स लगे, किसी महीने 5। तो ऑन माय एस्टिमेशन मैं देख सकती हूँ कि मुझे पता है हर महीने 100 कस्टमर्स आते हैं मेरे पास, तो 100 कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे 4 सिलेंडर लगते हैं, वो मेरी हो गई फिक्स्ड। किसी महीने मुझे 5वां सिलेंडर लग गया या 6ठा सिलेंडर लग गया, तो वो मेरा चला गया वेरिएबल में, ठीक है?
तो अब जब हम कॉस्ट की बात करते हैं बिजनेसेस के कॉस्ट की, तो ये देखिए सबसे ज्यादा 33% लेबर एंड 32% फूड एंड बीवरेजेस, इस तरीके के बिजनेसेस में अराउंड 65% कॉस्ट किस में लग रही है, वेरिएबल में लग रही है। बाकी रेंट, पेपर, मिसलेनियस, एनर्जी सेमी वेरिएबल में कह लो, तो ये सब किसका पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट किसका है, ये फिक्स का। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ज्यादा लगती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंपैरेटिवली टू फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तो जो वेरिएबल कॉस्ट है, अब हम उसको और क्या समझ सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को उसे हम कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। क्यों कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत लागत कह सकते हैं, या वेरिएबल को हम कह रहे हैं परिवर्तनशील लागत है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, एक यूनिट बढ़ाने से या एक यूनिट कम करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगा वो मेरी मार्जिनल कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो हम इसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं जब भी हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। फिक्स कॉस्ट को हम कैसे कंसीडर करेंगे, हम उसे कंट्रीब्यूशन में कंसीडर कर लेंगे। तुम्हारी एक यूनिट के बढ़ाने से, हमने एक यूनिट बढ़ा दी, हमने कहा कि हम 10 की जगह 11 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक यूनिट हमने बढ़ा दी, या फिर हम 10 की जगह सिर्फ 9 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने एक यूनिट कम कर दी, तो उस वजह से मेरी टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगा उसे हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है कि कंपनी एक अम्ब्रेला प्रोड्यूस कर रही है जिसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 250 है, 250 रुपए है। तो अगर 501 यूनिट्स का प्रोडक्शन करती है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 501 मल्टीप्लाइड बाय 250 रुपीज। अगर 500 यूनिट्स बनाती है तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 250, एक यूनिट कम कर दी, 499। तो ये क्या हो गया, ये मेरी बेस यूनिट्स हो गई ये वाली। ठीक है, और ये मैंने +1 कर दिया यहां पर, और यहां पर मैंने कर दिया -1। एक यूनिट बढ़ाने से क्या चेंज आया या एक यूनिट कम करने से क्या चेंज आया। तो अगर मैं बेस यूनिट बनाती हूँ, 500 यूनिट्स बनाती हूं, तो ये मेरी टोटल कॉस्ट है 2,25,000 रुपए। 1 लाख रुपए कैसी है, मेरी फिक्स कॉस्ट है, वो तीनों में सेम रहेगी, चाहे मैं 501 बनाऊं, चाहे मैं 500 यूनिट्स बनाऊं, चाहे मैं 499 यूनिट्स बनाऊं। लेकिन जब मैं 500 यूनिट्स बना रही हूं तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है, 2,25,000। जब मैंने एक यूनिट बढ़ा दी तो मेरी एक यूनिट भी बढ़ गई, इसकी टोटल कॉस्ट भी बढ़ गई 250 रुपए से, क्योंकि एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट पे फर्क आया, फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं आया। जब मैंने एक यूनिट कम कर दी तो मेरी टोटल कॉस्ट भी क्या हो गई, 250 रुपए से कम हो गई। ये देखो, इसमें से 2,25,000 में से 250 माइनस कर देंगे तो यही आएगा 2,24,750। तो ये कम हो गए। तो इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ा कि मेरी टोटल कॉस्ट पर इफेक्ट किसका पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट का टोटल कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक कंपनी के लिए रिलेवेंट है टू अंडरस्टैंड, सो दैट वो वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। फिक्स कॉस्ट को कितना भी प्रोडक्शन कर ले वो सेम रहेगी, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता इन दी शॉर्ट रन। हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में जब हम बात कर रहे हैं तब हम क्या कहते हैं कि ऑल प्रोडक्शन फैक्टर्स आर वेरिएबल। सारी कॉस्ट कैसी हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। लेकिन शॉर्ट रन में कंपनी को किस पर ध्यान देना है, कंपनी को ध्यान देना है वेरिएबल कॉस्ट पर। ठीक है, तो अब जब वेरिएबल कॉस्ट इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो हम किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, ये इक्वेशन सभी को पता होगी कि कंपनी प्रॉफिट। हाँ जी सर। मैम कैन वी टेक ओवर दिस फ्रॉम टुमारो। हाँ जी सर। Actually, we are exceeding time for today.
ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस स्लाइड और उसके बाद फिर हम कल ले लेंगे इस टॉपिक को, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है, श्योर। ओके मैम। हाँ जी, ये वाला बस स्लाइड खत्म कर देते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन फ्रॉम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो मेरी कितनी सेल्स आई, उसमें से मैंने टोटल कॉस्ट को डिडक्ट कर दिया। पॉजिटिव प्लस का वैल्यू आएगा तो हम कहेंगे कि ये प्रॉफिट है, माइनस का वैल्यू आएगा तब हम कहेंगे कि ये लॉस है। फिर हमने कहा कि टोटल कॉस्ट को हमने किस किस पोर्शन में डिवाइड किया? हमने किया फिक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में। तब हम इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स, यहां टोटल कॉस्ट की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं क्या कर रही हूं? फिक्स कॉस्ट को ले जा रही हूं प्रॉफिट की साइड। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को अपना सेल्स का इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखाना है। फिक्स कॉस्ट का रेलेवेंस मेरे लिए खत्म हो गया। तो हमने कहा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये टोटल किसके इक्वल होगा? इसको हम क्या बोल सकते हैं? कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है? कि सेल्स से जब मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, डिडक्ट कर दी, तो जो अमाउंट बचा वो क्या हुआ मेरा? वो बचा फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट का टोटल अमाउंट। तो मेरी फिक्स कॉस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है इन माय टोटल सेल्स? तो हमने कहा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, ठीक है? तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? दिस इज द एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से जितना ज्यादा है, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था ना, तो 500 हमने कहा कि 500 एम्ब्रेला प्रोड्यूस कर रही है और 250 मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। तो 250 वेरिएबल कॉस्ट है अगर, तो सेलिंग प्राइस सपोज मेरा क्या हो गया? मैंने मान लिया सेलिंग प्राइस है 300, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट यहां पर आ गया। तो कितना कंट्रीब्यूशन हो गया इस केस में मेरे पास? 300 माइनस 50। तो हम इसको क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूशन और ग्रॉस मार्जिन, कि कंपनी कितना कंट्रीब्यूशन ले रही है या कंपनी कितना ग्रॉस मार्जिन जनरेट कर रही है फ्रॉम दी सेल्स। तो ये कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ओके? तो फ्रॉम टुमारो वील स्टार्ट विद दिस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ओके? ओके मैम, गुड नाइट।